देखते हैं एक वीडियो पॉइंट में। The world becomes a small village where the sites are mingled and cultures are blended. And with the technological evolution, schools and universities are no longer the only source of information. Nowadays, students can find information easily and conveniently through the internet and modern technology, and may access information beyond what is required to know during their study years. In order to keep pace with the rapid development of the educational systems, the educational system should be developed to become more flexible and innovative. Competency-based learning, the most important characteristic of this form of flexibility. Because this system is measuring learning rather than time. Note, these two academically outstanding applicants who have the highest degrees of intelligence, one of them is studying in a traditional way, and the other one is studying in a modern way, with competencies mainly adopted. The system helps greatly to education development, as it is not limited to the traditional method of learning, from the obligation to attend lectures, or abide by the number of study hours. Student can access academic content online, anytime and from anywhere. On the psychological side, it allows the students to eliminate a lot of stress, such as school fees and the fuss to get textbooks, and taking exams at a specific time that can be changed, etc. The new modern learning in this system is less cost than the traditional system. It depends on the time of the study, not on the number of subjects taught by student. This system also provides educational support by providing books, links, research, articles, and others online. The system provides the students to choose the test date and timing in accordance with the appropriate time that determined by himself. Thus, the student is forced on gaining information rather than on grades. This method provides interesting learning model and gives the students plenty of time to practice his activities and hobbies, which leads to psychological balance, and that motivate the student to improve and expedite his performance, as it is not related with studying years and passing certain material and articles. Therefore, the student can pass his academic years faster in shorter period, as long as he is fully prepared and efficient to have his educational attainment. In addition, this form of learning helps to choose the material that the student needs to know when studying. For students who have full knowledge about certain materials, as a result of their experience and previous readings, students can enter exams and tests directly. To apply this form of education, two essential factors is must. The first factor, changing cultures inherited by breaking the deal-like traditional education process of dividing the study into classes, and determine the number of learning hours which cannot be overridden. Compliance with the inflexible lectures timetable and committing to a specific date for the tests which cannot be changed and other traditional methods. The second factor, the need for attention to new technologies that would help to achieve this aim by using sophisticated programs, communication mechanisms, computers, networks, and different forms, such as audio, graphics, search mechanisms, and electronic libraries, as well as web portals. Human measured by their mental and cognitive developments, and not their age. Who owns the information has the right to lead, and the most capable for leadership. We must therefore equip minds to acquire greater knowledge about the innovative method. Competency-based learning, the optimal model to learning. What is competent? Competent is a person's ability to practice the knowledge acquired over the time. Very simple. किसी ने 50 साल में जो डिग्री हासिल की है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, फिर डबल PhD, सब कुछ किया,
ठीक है। और जब उस नॉलेज को शोकेस करने का टाइम आया तब वो उसमें सफल रहा, मतलब उस बंदे के पास कॉम्पिटेंस है। लेकिन किसी ने डिग्री हासिल की और जब प्रैक्टिकली करने का टाइम आया, अपने नॉलेज को थोड़ा शो ऑफ करने का टाइम आया, तो बंदा नहीं कर पाता। इसका मतलब वो बंदा लेस कॉम्पिटेंट है। चलिए दूसरी तरह से समझते हैं। कितना भी छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, उसको करने के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। अगर मुझे बाजार से कुछ खरीद कर लाना है, चाहे हमें ऑनलाइन ऐप्स से ऑर्डर करना है, चाहे हमें मॉल में जाकर खरीदना हो, चाहे बाजू वाली छोटे से किराने की दुकान से ही कुछ खरीदना हो, फिर भी हमें कुछ कॉम्पिटेंसीज चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो क्या करना पड़ता है? सामान की लिस्ट बनाएंगे और उसके साथ ही उसका बजट बनाएंगे। कितना पैसा है, कितना सामान लेके आना है, कौन सी दुकान से खरीदना है। अगर खुद गए हैं तो प्रॉपर रैक से सामान उठाते हैं, उसका ब्रांड देखते हैं, उसका एमआरपी चेक करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। सो मैनी थिंग्स टू बी चेक। उसके बाद में बिलिंग करना, मैच करना उस थिंग्स को, वापस पैसे लेना। सो मैनी थिंग्स, सो मैनी टास्क, सो मैनी एबिलिटीज। सो इन सब चीजों की जरूरत है। छोटे छोटे काम के लिए भी या बड़े से बड़ा प्लेन क्यों ना बनाना हो, उस चीज के लिए भी कॉम्पिटेंसीज की जरूरत होती है। That we observe in our day-to-day life. So this is what CBSE talking about competency-based education. इसलिए भी CBSE बात कर रही है competency-based education की। बस यही है आज के टॉपिक का सार। Competency is measurable. सेकेंड लाइन में है competency is measurable. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को अच्छे से जानते हैं। मैं अगर आपकी कक्षा में जाता हूं और पूछता हूं तो आप तुरंत कहेंगे ये भैया या ये बहन सुपर कॉम्पिटेंट है, ये भैया कॉम्पिटेंट ज्यादा है औरों के मुकाबले। तो कॉम्पिटेंट जो है वो मेजरेबल है। एकदम से आप सामने सामने स्किल कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर द स्किल ऑफ नॉलेज ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, दैट व्हाई कॉम्पिटेंसी इज मेजरेबल। दो चीजें क्लियर हो गई। पहला, कॉम्पिटेंसी इज द शो ऑफ नॉलेज, और दूसरा इट्स मेजरेबल। बीइंग कंप्लीटेड मींस यू डोंट ओनली हैव द नॉलेज टू परफॉर्म अ टास्क। आपके पास खाली ज्ञान नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। बट नॉलेज तो सबके पास है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईवीएस, एसएसटी और इंग्लिश, बस सबने ही पढ़ा हुआ है, राइट। अगर आप ग्रेजुएशन में आ गए तो एनालिटिक हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया। आपने जितने भी बीटेक वगैरह के 32 से 40 सब्जेक्ट हो गए, लेकिन उन सब्जेक्ट को पढ़ के और ग्रैस्प करके किसने क्या क्या किया, दैट्स बीइंग द competent person. Competency-based learning is a learning approach where learners move from one learner level to a higher by demonstration of the previous level. मैंने आपको अपना लेवल 1 का लर्निंग दिखाया, आपने बोला ठीक है भाई लेवल 2 पर चलते हैं। लेवल 2 का मैंने शो ऑफ किया तो आपने बोला चलो भाई बच्चा ठीक है, कॉम्पिटेंट है, इसको लेवल 3 पर चलते हैं। इंडिया में तो अभी खासकर
knowledge, skill and attitude appropriate to the content. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन किन कीवर्ड में को इनमें हम बता सकते हैं। पहला है skill based learning. A skill based activity can also be a simulation, that is a pretend way to practice skills. An example of practicing an actual skill is driving a car during a driver's training class. A skill simulation explain is using a computerized driving program instead of a real car. अब हमें कार चलाना सीखना है, तो कार चलाने के लिए हमने किसी स्कूल में जो कार सिखाती है उस स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया। तो ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के साथ ही वो कार में ही मुझे बिठा देगा, तो कभी नहीं कार में बिठा देगा। अब जो वहां पे कंप्यूटराइज कार की व्यवस्था है, अब पहले नहीं थी लेकिन अब कंप्यूटराइज कार की व्यवस्था है। आप वहां जाओगे, आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद वो आपको कंप्यूटराइज कार में सबसे पहले ट्रेनिंग देगा। वो आपको सिखाएगा दायां ऐसे करना है, बायां ऐसे करना है, ये जो भी है उस कार में जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, एक्सेलेरेटर हो गया, बाकी जो भी चीजें हैं, तो वो आपको पहले कंप्यूटराइज कराएगा, देख लेगा कि आप दक्ष हो गए हो, फिर जो है आपको ओरिजिनल कार में बैठने का मौका दिया जाएगा। ऐसे आपको कार में वो नहीं बिठाएगा। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी बेस्ड लर्निंग। प्रोफिशिएंसी बेस्ड असेसमेंट इज अ असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। यह फॉर्मेटिव और योगात्मक मूल्यांकन का रूप ले सकता है। प्रवीणता आधारित शिक्षा जिसमें सीखने के लक्ष्यों पर विशिष्ट किट, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और सार्थक निर्देश शामिल हैं। उसके बाद है मास्टरी बेस्ड लर्निंग। With mastery based learning, all students must demonstrate what they have learned before moving on. Before students can pass a course, move on to the next grade level or graduate, they must demonstrate that they have mastered the skill of knowledge they were expected to learn. महारत आधारित शिक्षा के साथ सभी छात्रों को आगे बढ़ने से पहले जो सीखा है उसने उसे प्रदर्शित करना चाहिए। इससे पहले कि छात्र कोई कोर्स पास करे, अगली कक्षा के स्तर पर जा सके या स्नातक हो, उन्हें यह प्रदर्शित करना होगा कि उन्होंने उन कौशलों और ज्ञान में महारत हासिल कर ली है जिसे उन्हें सीखने की उम्मीद थी। उसके बाद है आउटकम बेस्ड लर्निंग। Rather than just getting a passing grade of mathematics, a student might be assessed as level 4 or number sense, level 5 for algebraic concepts, level 3 for measurement skill, etc. This approach is valuable to schools and parents by specifically identifying a student's strengths and weaknesses. गणित के लिए केवल पासिंग ग्रेड प्राप्त करने के बजाय एक छात्र को संख्या बोध के लिए स्तर 4, बीजगणितीय अवधारणाओं के लिए स्तर 5, माप फसल के लिए स्तर 3 आदि के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से एक छात्र की ताकत और कमजोरियों की पहचान करके स्कूलों और माता पिता के लिए मूल्यवान है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। However, performance-based assessments can be applied to almost any lesson and any objective. For example, children could be asked to design and carry out an experiment in science, write and perform a poem in English, or create a series of themed painting in art. In general, these assessments can take many forms. हालांकि प्रदर्शन आधारित आकलन लगभग किसी भी पाठ और किसी भी उद्देश्य पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों को डिजाइन करने और विज्ञान में एक प्रयोग करने, अंग्रेजी में एक कविता लिखने और प्रदर्शन करने या कला में विषयगत चित्रों की एक श्रृंखला बनाने के लिए कहा जा सकता है। सामान्य तौर पर यह आकलन कई रूप से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन। इन एजुकेशन the term standard based refer to system of instructions, assessment, grading and academic reporting
reporting that are based on students demonstrating understanding or mastery of the knowledge and skill they are expected to learn as they progress through their education. शिक्षा में शब्द मानक आधारित निर्देश, मूल्यांकन, ग्रेडिंग और एकेडमिक रिपोर्टिंग की प्रणालियों को संदर्भित करता है जो ज्ञान और कौशल की समझ या निपुणता का प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर आधारित होते हैं जिन्हें वे अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रगति के रूप में सीखने की उम्मीद करते हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो वो हैं और ये सभी फाइल हैं किसी चीज के कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कौन कौन यूज करता है? अब जैसे मैं हूं, मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो मैं भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, कोई स्कूल स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करना चाहता है वह भी यहां पर कवर हो गया। किसी ने पढ़ाई को स्टार्ट की लेकिन वह उसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो अपनी मेहनत से सीखते वह कॉम्पिटेंट बन गया, वह लोग भी यहां पर कवर हो जाएंगे। उनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, जिन्होंने स्पेसिफिक स्किल मतलब उसको पता था कि क्या करना है लाइफ में और वही उन्होंने डेवलप किया। मतलब कि एक डिग्री है 3 सालों की, उसमें टोटल 30 सब्जेक्ट है, उसको बस एक ही सब्जेक्ट पसंद था, उन्होंने एक सब्जेक्ट की मास्टरी की और बाकी के 29 सब्जेक्ट में उन्होंने बस पास मार्क्स स्कोर किया। उसके लिए भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हम कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चों को। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग डिलीवर किया जाता है ज्यादातर ऑनलाइन फॉर्मेट, क्योंकि ऑफलाइन में तो हर एक के हिसाब से जाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में हर बच्चों का हर तरह का क्राइटेरिया सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मैंने पहले ही बताया था, बच्चों को ऑडियो चाहिए हम देंगे, बच्चों को वीडियो चाहिए हम देंगे, बच्चों को रिवीजन चाहिए हम देंगे, बच्चों को रिविजनरी वीडियो चाहिए हाँ देंगे, बच्चों को रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट चाहिए वह भी देंगे, बच्चों को रेगुलर बेसिस पर फीडबैक चाहिए वह भी देंगे, बच्चों को पेरेंट्स टीचर मीट में अपने पापा को लाकर पार्टिसिपेट कराना है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाना है वह भी करेंगे। अब है लर्नर सेंट्रिक, जो बच्चा कहता रहेगा वह हम करते रहेंगे क्योंकि कॉम्पिटेंस बेस्ड है। अगर बच्चे ने 1 साल का सिलेबस 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया हमारे थोड़े एक्सेल के थ्रू तो कितना अच्छा होता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? चलो भाई आपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, चलो एग्जाम में इसको करके दिखाओ। बच्चे ने कहा हो गया, चलो थोड़ा और टेक्निकल एग्जाम है इसको करके दिखाओ, वह भी हो गया। ठीक है, क्लास क्लियर भले ही 7 मंथ में हुआ हो आपका, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास का पढ़ना शुरू कर दो। आउटकम बेस्ड होता है सारा का सारा। आपने बहुत सारे बच्चों को भी देखा होगा जिनके पेरेंट्स ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि 6th क्लास में वो 7th क्लास का मैथ सॉल्व कर देते हैं क्योंकि वह कॉम्पिटेंट हो चुका है। हाँ भाई 6 तो हो गई, अब चलते हैं आगे। राइट, आउटकम बेस्ड। नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंशिएटेड, आपको प्रॉपर बेसिस पर फीडबैक प्रोवाइड करके स्टूडेंट को आपको डिफरेंट असेसमेंट का पता लगता है। अच्छा यह बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसको और ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा, और ज्यादा कॉन्फिडेंट बना इस फील्ड में। एफिलिएशन, डिफरेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कराना है बच्चों को। ऑनलाइन की बहुत ज्यादा लिमिट है, ऑफलाइन की बहुत ज्यादा लिमिट है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। आपको 100 पेजेस की बुक रिकमेंड करनी है स्टूडेंट। अगर आप क्लास में जाओगे तो 100 × 40 40 बच्चे तो रहते ही हैं करेक्ट, तो उसका फोटोकॉपी अगर हम मल्टीप्लाई करके करें तो इसका
मैसेज में जाओगे कि बेटा सुन, आपने यहाँ पर अगर आज यह ठीक किया होता तो और ज्यादा आप कॉम्पिटेंट बन सकते थे। इसीलिए इन चीजों को थोड़ा सा ठीक करो। जितना ज्यादा पर्सनलाइजेशन होगा, बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी माइंडसेट पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी लर्निंग हैबिट्स पर ध्यान दिया जाएगा, उतना ज्यादा वह बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। और यह जो कीवर्ड है ना, ये आउटकम बेस्ड, इसको बहुत ज्यादा दिमाग में रखना। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, फोकस ऑन मास्टरी। ऐसे करके मास्टरी होती है। लेवल 1 शो ऑफ किया, गए लेवल 2 पे। लेवल 2 शो ऑफ किया, गए लेवल 3 पे। लेवल 3 पर भी आपने शो ऑफ किया, गए मास्टर लेवल पे। ऐसे फॉर्मेट में जाते जाते क्या होता है भाई, मास्टरी तो आ ही जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने नॉलेज ग्रैस्प किया और बैठ नहीं, हमने दुनिया को दिखाया, शो ऑफ किया, और हमने दुनिया को दिखाया, फिर आ गए, फिर आगे गए, दुनिया को दिखाया, और इस तरह मास्टरी हो जाती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट with this learning approach, learners can learn how to acquire knowledge and skill and apply them to real life problems. उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाइफ में यूज पता चल जाता है। आपने किसी स्टूडेंट को कहा कि अभी मूवी रिलीज हुई है, फ्राइडे आया तो चलो मूवी रिलीज हुई, 3 घंटे की मूवी है, मुझे पता है आप देखोगे क्योंकि अभी आई है, नेटफ्लिक्स पे आई हो या प्राइम पे आई हो या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। चलो इसका एनालिसिस करते हैं, और ऐसा एनालिसिस करते हैं कि पता लग जाना चाहिए कि इस मूवी को नॉर्थ में अगर देखा जाए तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, साउथ में देखा जाए तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, अगर 6th क्लास का स्टूडेंट देखता है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, और अगर कोई ग्रेजुएट लेवल का व्यक्ति देखता है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। दिमाग एकदम घूम गया। अब वह मूवी नहीं, अब वह प्रोजेक्ट है बच्चों के। जब वह बच्चा उस प्रोजेक्ट को देखेगा, मतलब मूवी को देखेगा, आराम से वह अपने कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग एनालिसिस लेकर आएगा। तो रिलेवेंस टू द रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके आप स्टूडेंट को नॉलेज दोगे। जितना ज्यादा उसके पास लर्निंग सेंट्रिक फॉर्मेट में जाओगे, उतना ज्यादा बच्चा वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा। Without a doubt, competence-based learning helps learner become relevant in the real world. So, by creating content, ensure that the modules don't just state facts, but also utilize case study and scenario that trigger the practical application of knowledge. यहाँ मैं बताना चाहूँगा, केस स्टडी जितने भी टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल हैं, वह कैसे पढ़ाते हैं? केस स्टडी से, केस स्टडी के थ्रू अगर 100 बिजनेस बच्चों को बता दिया, उनका फेलियर बता दिया, उनका सक्सेस बता दिया, तो आप बताइए कोई स्टार्टअप करता है तो 100 केस स्टडीज में एक उसका भी नाम होगा। बहुत सिंपल है। तो जितना ज्यादा केस स्टडी यूज करोगे, रियल प्रॉब्लम्स को यूज करोगे, बच्चों को ध्यान में रख करके आप उनका कंटेंट प्रिपेयर करोगे, आउटकम बेस्ड लर्निंग में जाओगे, तो बच्चा उतना ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएगा। चलिए कुछ वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
pursue or earn degrees, often because traditional classroom-based programs don't fit their lives. In response, a growing number of colleges and universities are offering another option: competency-based education. Each program is unique, offering creative, state-of-the-art learning opportunities to fit the needs of many students who might not otherwise pursue education. Programs accomplish this by transparently communicating the learning objectives students must achieve to earn degrees and other credentials, by enabling students with existing knowledge and skills to personalize their educations and accelerate progress towards completion, by using technology that enables students to learn anytime, anywhere, at prices they can afford, and by integrating support from faculty, mentors, and coaches that can build confidence needed for success, aimed at creating fair and just educational results. While no single option is right for all students, these programs offer relevant and verifiable skills for greater success in work and life. The Competency-Based Education Network is helping colleges and universities create programs that engage students who otherwise might not be reached. Learn what's happening and what's possible at cdenetwork.org. Next slide, please. तो बात हो गई कि इतना कुछ बता दिया, इसको कैसे लागू करेंगे। तो कुछ बातें जानते हैं कि इसको कैसे लागू कर सकते हैं। तो दीक्षा ऐप, सबने दीक्षा ऐप पे पिछले साल सर्टिफिकेट्स वगैरह तो क्लास करके लिया ही है, तो आप लोगों को दीक्षा ऐप के बारे में पता है। तो हर कक्षा के लिए अनेकों प्रकार के माध्यम वहां पे दिए गए हैं, वहां से सीख सकते हैं और उसका उपयोग कक्षा कक्ष में करने की आवश्यकता है। बच्चों को जब तक पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट नहीं आ जाए तब तक बच्चों को हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, इसको लाना जरूरी था। जैसे हम सभी जानते हैं कि विद्या भारती की एक बहुत ही अनुपम कृति है पंचपदी शिक्षण पद्धति, जो विशिष्ट शिक्षण पद्धति है और यह बिल्कुल भारतीय जनगण पर आधारित है। और हम उसमें जिस पद्धति से बच्चों को बताते हैं, उस पद्धति से हम बच्चों का समग्र अधिगम कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेप है अध्ययन का, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चों में हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। पहले तो नॉलेज देते हैं, डेवलप ऑफ नॉलेज करते हैं। इसके बाद जो बोध है उसमें हम बच्चों के अंदर समझ विकसित करते हैं। तीसरा पद है हमारा अभ्यास का, उसमें हम बच्चों के अंदर कौशल का विकास करते हैं। इसके बाद जो चौथा पद है वो होता है प्रयोग का। प्रयोग के माध्यम से हम डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हैं और कौशल को हम विकसित करते हैं। जो कुछ भी आपने सीखा है उसके करने की विधि को हम जानते हैं। और अंतिम जो पद है, जो प्रसार का पद है, जिसमें हम अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं और साथ में जो हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले अन्य भैया बहन जो हैं, उनके भी विकास की बात करते हैं और इस माध्यम से हमारी जानकारी का विकास होता है। इस प्रकार से पंचपदी में बालकों के समस्त अधिगम की कल्पना की गई और इसके माध्यम से हम एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जो बच्चों के अंदर एटीट्यूड के रूप में डेवलप होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस प्रकार के शिक्षण की बात की गई है। जब बच्चे खोजी विधि से पढ़ते हैं तो अधिक सीखते हैं। इसके कई उदाहरण। अब हम अगर बच्चों को सीधे सीधे कोई विषय परोस देते हैं, होता है ना, क्लास में जाते हैं, चलो ये चैप्टर नंबर 8 खोल लिया चैप्टर नंबर 8, उसके बाद शुरू हो गए, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, कुछ पूछना हो बीच में तो एक आध बातें पूछ ली और फिर घंटी बजी चले आए। तो उसमें कितने बच्चे सीख पाएंगे? बहुत ही कम। जो बिल्कुल जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है वो सीख लेंगे, लेकिन जिनका आईक्यू थोड़ा कम है, मतलब 40 बच्चे हैं क्लास में, तो 3-4 अच्छे से आपकी बातों को ग्रैस्प कर लेंगे और बाद बाकी नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं आता, जो मैंने अभी बोला।
सहपाठी है उससे पहले बात करता है, फिर घर जाता है, फिर अपने परिवार से बात करता है, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, ताऊ चाचा के साथ बातचीत करता है, उससे कुछ सीखता है। आस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा लोग है तो उसके पास इसकी चर्चा करता है, उससे कुछ सीखता है। और जब बाजार में वो सामग्री खरीदने जाता है तो दुकानदार से भी कुछ सीखता है। और अंत में जब वो प्रोजेक्ट बनाकर लाता है तो इतना कुछ सीख गया होता है कि हम कक्षा कक्ष में उसको इतना नहीं सिखा सकते हैं। कक्षा कक्ष में हम 2, 4, 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चा स्वयं से सीखता है तो उसे ग्रहण कर चुका होता है। इसीलिए ये मानकर चले कि हमें अब भैया बहनों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के द्वारा ही पढ़ाना है, ताकि कक्षा कक्ष में एक भी बच्चा दूसरे से कम ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए सीबीएसई को समझते हैं, इस सीबीआई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचे को लॉन्च किया है। वो मेरे पास है, दो है इसमें। पहला लर्निंग आउटकम्स जो है ये बुक, ये करीब 128 पेज का है। ये अवेलेबल है आपका सीबीएसई आईटी पे, तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी प्राइमरी स्टेज और अपर प्राइमरी स्टेज के लिए दिया गया है, इंग्लिश वो भी प्राइमरी स्टेज और अपर प्राइमरी स्टेज के लिए दिया गया है, उर्दू वो भी अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्टेज के लिए दिया गया है, मैथ्स है इसमें, एनवायरमेंटल स्टडीज है, साइंस है, और हाँ साइंस जो है वो 6 to 8 के लिए दिया गया है, और सोशल साइंस भी 6 to 8 के लिए दिया गया है, और एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो 3 to 5 के लिए दिया गया है। इसमें आप पढ़कर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो सेकेंडरी स्टेज के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो कंटेंट है इसमें हिंदी भाषा में सीखने के प्रतिफल है, इसमें लर्निंग आउटकम्स फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू भाषा है, संस्कृत भाषा है, लर्निंग आउटकम्स फॉर साइंस, लर्निंग आउटकम्स इन सोशल साइंस, लर्निंग आउटकम्स फॉर मैथ्स, लर्निंग आउटकम्स फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स आर्ट एजुकेशन। तो ये दो बुक, ये है करीब 154 पेज का है, 154, और ये सीबीएसई आईटी में उपलब्ध है, तो इसको भी देखा जा सकता है। यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है। सीबीएसई ने इस असेसमेंट फ्रेमवर्क की रूपरेखा ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर तैयार की है। सीबीएसई के अनुसार असेसमेंट का तरीका बदलने का मकसद छात्रों में रटने की आदत खत्म कर उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान देने की और समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता विकसित करना है। टीवी9 न्यूज डिजिटल से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की वाइस प्रेसिडेंट प्रीति हिंगोरानी ने इस पर विस्तार से चर्चा की और कई सवालों के जवाब दिए। नए मूल्यांकन ढांचे की आवश्यकता क्यों? नए मूल्यांकन ढांचे की आवश्यकता पर सीबीएसई द्वारा एक आधिकारिक सूचना में लिखा है, क्या हम अपने स्कूल में बच्चों को खुद और उनके जीवन को अच्छी तरह से संभालने के लिए सिखा रहे हैं, या क्या हम केवल टेस्ट टू टेस्ट कर रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। योग्यता आधारित शिक्षण या योग्यता आधारित शिक्षा सीबीई एजुकेशन पर आधारित दृष्टिकोण है। यह आयु और ग्रेड उपयुक्त स्तर पर वास्तविक जीवन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों द्वारा सीखने में दक्षता सुनिश्चित करेगा। यह वह जगह है जहां नया मूल्यांकन काम आता है। नए मूल्यांकन ढांचे के बारे में ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से बनाया गया है। यह फ्रेमवर्क 6 to 10 कक्षा के कक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा। इसमें 3 विषय अंग्रेजी, गणित और विज्ञान शामिल है। प्रश्न पत्र और मूल्यांकन मोड को चरणबद्ध तरीके से 3 से 4 वर्षों में बदल दिया जाएगा। नए ढांचों को लॉन्च करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की परिकल्पना करती है। यह 21वीं सदी के लिए
छात्रों को तैयार करना लक्ष्य रखती है और रट्टा मारने वाली शिक्षा के बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देती है। नए मूल्यांकन दिशा निर्देशों को एनईपी 2020 में सुझाए गए परिवर्तनों के शिक्षण और क्रियान्वयन की गुणवत्ता के सुधार लाने के लिए रखा गया है। इस पहल के लिए ब्रिटिश काउंसिल यूके के पार्टनर्स कैम्ब्रिज यूके, एनएआरआईसी और अल्फा प्लस के साथ काम कर रही है। पार्टनर्स का योगदान क्या है? प्रीति हिंगोरानी के अनुसार कैम्ब्रिज पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन सीपीई की भूमिका भारत में 360 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की है ताकि वे नए शिक्षण दृष्टिकोण में मास्टर ट्रेनर बन सके। हिंगोरानी ने कहा, हम उन कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं जिनकी मदद से मास्टर ट्रेनर्स देश भर के अन्य शिक्षकों को सपोर्ट करने में सक्षम होंगे। सीपीए प्रभावी कार्यक्रम कैसे बनाएं? इस बारे में बात करते हुए हिंगोरानी ने जवाब दिया, हम भारत में अपनी टीम कैम्ब्रिज असेसमेंट, इंटरनेशनल एजुकेशन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की विशेषज्ञताओं पर आकर्षित हुए हैं। ब्रिटिश काउंसिल एक नमूने के रूप में 1500 से अधिक वस्तुओं का एक बैंक बनाएगी और 40 मूल्यांकन डिजाइनर्स और 180 मास्टर टेस्ट आइटम लेखकों को प्रशिक्षित करेगी। इन्हें प्रशिक्षण ऑनलाइन शिक्षा मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे दीक्षा कहा जाता है। इस परियोजना में मदद के लिए लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 14000 से अधिक शिक्षकों को लेसन के एकीकृत बैंक के माध्यम से भी सहायता दी जाएगी। सीबीएसई ने एक बयान में कहा, यह नया योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा बेहतर शिक्षार्थी परिणामों के लिए अंतरराष्ट्रीयकृत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को सक्षम बनाने और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल मूल्यांकन बनाने में सहायता करेगा। एनसीईआरटी ने भी इसका समर्थन किया। सप्ताहवार योजना में पाठ्य पुस्तकों के अध्याय विषय के बारे में दिलचस्प गतिविधियां और चुनौतियां शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह सीखने के परिणामों के साथ विषयों को मैप करता है। सीखने के परिणामों के साथ विषयों की मैपिंग का उद्देश्य छात्रों के सीखने में प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों को सुविधा प्रदान करता है। हालांकि यह दोहराया गया है कि स्कोर के लिए टेस्ट करने के बजाय सीखने पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पहले चरण में केंद्रीय विद्यालय स्कूलों और नवोदय विद्यालय, चंडीगढ़ के सीबीएसई स्कूलों और कुछ निजी स्कूलों के फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा 2024 तक। इस देश भर में 25,000 सीबीएसई स्कूलों में लागू किया जाएगा जिसमें 1.32 मतलब 1,32,000 शिक्षक और 2 करोड़ छात्र शामिल होंगे। उसके बाद एक और बुक, स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ये बुक भी लॉन्च हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए कौशल आधारित और योग्यता आधारित मूल्यांकन पर मुख्य ध्यान और निपुण भारत उपलब्धि में सुधार लाने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई प्रमुख कक्षाओं पर छात्र को सीखने और परिणामों का आकलन करने के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन शुरू करने की योजना बना रहा है और इस आकलन का प्रस्तावित नाम है स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग सफल। मूल्यांकन जो है वो मुख्य दक्षताओं के मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। तो आप इस किताब को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cbseit.in। थैंक यू। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो बातें सीरियल के विषय में हुई हैं तो आप भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोल सकते हैं। आपकी तरफ से भी कुछ बातें हो जानी चाहिए इस टॉपिक पे, तो आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं या कोई टॉपिक ऐसा हो जो ना क्लियर हुआ तो मैं उसको फिर से क्लियर कर देता हूँ।
वैसा कुछ नहीं है, आप में है कैपेसिटी, आप 3 महीने में कुछ नहीं करो, आप 1 महीने में अगर आपने उस 3 महीने के कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आप आगे जाओगे, आपको बढ़ा दिया जाएगा आगे। उसके बाद आप उसके आगे का जो भी कोर्स मटेरियल है, क्योंकि अभी जो भी आने वाला है वो सारा का सारा कहाँ आने वाला है, इंटरनेट, वो सब आपको इंटरनेट पे मौजूद होगा। अब इसमें एक बात आती है कि अगर इंटरनेट पे रहेगा तो अभी जो कोरोना काल आया था उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ इंटरनेट पे दिया था, तो भैया बहन देख के भी कर रहे हैं, आपने देख लिया कर लिया। लेकिन इस एग्जाम में क्या होगा कि अगर आपको एग्जाम देना है ऑनलाइन, तो उस ऑनलाइन एग्जाम में आपके अगल बगल में बुक वगैरह खुले भी रहेंगे तभी आप बुक नहीं देख पाओगे, ये तय है। क्योंकि आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, एक टाइम लिमिट होगा कि इस टाइम में आपको करना है, तो आप जब बुक पलटोगे तो क्वेश्चन अपने आप आगे चला जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो उस टाइम लिमिट में आपको जब करना होगा तो आप बुक नहीं देख सकते, और भी चीजें अगर आपके बगल में हो तो वो आप नहीं देख पाओगे। वो जब तक आपको अंदर से आएगा नहीं, जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगे, तब तक जो है वो आप कर नहीं पाओगे। तो जो एग्जाम्स भी होंगे उसमें कि आप दिखा रहे हो हाँ मैं अब शो ऑफ कर रहा हूँ कि हाँ चलो भाई मैंने 3 महीने का कोर्स 1 महीने में कर दिया, अब मैं अगली कोर्स को करूंगा, तो वो दिखाने के लिए भी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, तभी आप कर सकोगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि फिर होगा। इसीलिए वो एक टाइम लिमिट होगा उस क्वेश्चन का, वो पता है कि इतनी देर में ही ये बच्चा अगर कर लेता है तो ही हम उसको आगे करेंगे, नहीं तो फिर वो उसको एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। तो एग्जाम अगर आप देते हो वो ऑनलाइन है रखा हुआ, जब इच्छा तब दे सकते हो। अभी एक वीडियो में भी दिखाया गया था कि वो आपकी इच्छा पर है कि आपको एग्जाम कब देना है, आपको टेस्ट कब देना है, ये दिखाया गया था वीडियो में कि आपकी इच्छा है कि हाँ चलो भाई आपको लग रहा है कि मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा हो गया, कर लिया यार, अब देते हैं एग्जाम, देके देखते हैं। तो जैसा ही एग्जाम दिया, अगर आप कॉम्पिटेंट हो, आपने उस लेसन को बिल्कुल अच्छे से कर लिया हो, तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम लिमिटेशन रहेगा उस टाइम लिमिटेशन को आप कवर कर दोगे, और वो जैसे ही कवर होगा आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। तो यहाँ पे ये तो वही कहना है कि जो विद्यालय में अभी की जो पढ़ाई चल रही है थोपने वाली, वैसी ना होकर अब अगर कॉन्फिडेंस बेस्ड एजुकेशन होती है तो उसके लिए हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे करेंगे इसे, मटेरियल कौन देगा, आप दोगे, जो भी बच्चों को जरूरत है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, आप कराओगे। उसके लिए अब वेबसाइट, नेट, सब कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा कि हम क्या क्या प्रोवाइड करें। एक लेसन अगर हम कोई पढ़ा रहे हैं, उस लेसन से रिलेटेड हम क्या दे दें बच्चों को कि बच्चे जो है उसको देखें और वो देख करके कॉन्फिडेंस होता जाए। तो उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड आपको पहले से करके रखना पड़ेगा, आपको भी बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि बच्चे ही आपसे सवाल कर रहे हैं और आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उतनी तैयारी आपके साथ होनी चाहिए, उतनी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी कि अगर इस लेसन से रिलेटेड इतनी सारी चीजें अगर हमने नेट पे प्रोवाइड करा दिया है, बच्चे वहां से लेकर सीख रहे हैं, तो हमें भी उतनी चीजें बिल्कुल आनी चाहिए या उससे ज्यादा ही आनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे क्लास में और आपसे पूछ ले, अरे आचार्य ये बताइए ये कैसे होगा, पता चले कि हम ही सोचने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीजें एक चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अपनी स्कूल की वेबसाइट है, वहां पे एक फ्रेमवर्क है, उसमें आप डलवा सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर का चैप्टर वाइज ये है, और पहले से डाल कर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने का सिलेबस जो है उस सिलेबस के अनुसार आप डाल करके रखो, वो नहीं, सिलेबस जो है आप सिलेबस से आगे आपको जाके करना पड़ेगा। क्योंकि अभी होता है कि अभी हम गए सिलेबस हमने देखा वो जनवरी में ये 2 चैप्टर पढ़ाना है, तो ये 2 चैप्टर ही जनवरी में है, वो 2 चैप्टर ही पढ़ा करके निकल लिए, ऐसा नहीं। क्योंकि आप कॉम्पिटेंसी में अगर जाओगे तो आपको कम से कम 6 चैप्टर डाल के रखना पड़ेगा पहले से,
अभी आ रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उस पर हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से आ सकेंगे, नहीं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस बता दीजिए। अभी जो हम बताते हैं बच्चों को, ये प्लान करते हैं, पढ़ाते हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, इसमें अंतर क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि अभी जो चल रहा है, अभी जो हम पढ़ाते हैं वो रटने वाली विधि है। अभी आप जैसे कि अभी एग्जाम आने वाला है, अभी एग्जाम आएगा, तो बच्चे जो है कुछ दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं। वो पहले से नहीं मतलब कि ये है कि हाँ हमको करना है, तो अभी कुछ दिन पहले, अब जैसे कि कल मैथ्स का है तो आज मैथ्स को लेके बैठेंगे, पलट रहे हैं मैथ्स को, अरे ये क्या हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हो जाएगा, या फिर जिसमें उसको थोड़ी कमी लग रही है उसको लेकर के बैठेगा, पूछेगा जो भी है, आचार्य से पूछेगा, आचार्य जी ये वाला फोन करके या वीडियो कॉल करके वो उसको पूछेगा। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग होगी उसमें जो है बच्चा को रटने वाली कोई भी विधि नहीं होगी। अगर कोई चैप्टर, इंग्लिश का कोई चैप्टर अगर उसको पढ़ाया जा रहा है तो वो चैप्टर को ही ग्रैस्प कर लेगा पूरा, वो चैप्टर उसके साथ रहेगा, और उसके बाद जब वो बैठेगा तो उसको पहले से रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर रहेगा। वो बैठेगा तो आप कैसे भी क्वेश्चन दे दो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दो, वो उसको आराम से बैठ के कर सकता है। कहीं से भी आप कुछ निकाल के दे दो, जरूरी नहीं है कि जो 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए रहते हैं उसी 5 क्वेश्चन को करेगा। आप अगर उसके अलग से भी कुछ क्वेश्चन दे देते हो तो सीनियर के बच्चे जो होंगे वो उस 5 क्वेश्चन के बाद भी अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ खुद से बना